This is Imran Kazmi, and we are going to start our lecture 17 of Programming Fundamentals. In the previous lecture, we learned how the function call works, and in this lecture, we will work on some basic calculations performed in functions. So let's start from the simplest program. Write a program that calculates the sum of two numbers in a user defined function. So we need to develop a function that calculates the sum of two numbers. So we have the function sum with no return type, so that is why we have placed void over here, and with no argument, simple sum function. Here is its prototype or declaration. Main, clear screen, and the sum function is called. When the function is called, control would be transferred to the function. We will come over here into the body of the function sum, where we have three variables a, b and c. Enter two numbers, input the value of a and b. We have used cin statement to input a and b, then c equal to a plus b, and c out sum, and the value of c would be displayed. This is the sum of c, sum of two numbers. So this is the simple program having a function sum, and that function take two numbers, two integer as input, calculate their sum and display the sum. So no value is being taken in sum and no value is being returned from the sum. So at both ends we have void over here, neither getting any values, not returning any value. So sum is the function which have declared three variables in its own as local variables a, b and c, and the value of a, b are inputs. C is calculated as sum and the c is displayed. Let's check the output. Here is the output. Enter two numbers 12 and 14 and the sum is displayed. But this whole procedure or the process come or executed in the function sum. And what is the role of main? The role of main is simply to call the function sum, and the function itself would declare, input, calculate and display the values. Main would do nothing, just call the function and the function would perform everything for it. So this was the simple function that had two values, and this was the output. Similarly, when we use the same methods in Java, we have the method sum, and there is a simple sum call in main. Control would be transferred to the method sum, where the values of a and b are input in the same way as we used in Java, and then the two numbers are added and result is placed in C, and then C would be displayed. So here is the output in Java as well. Enter first value 12, enter second value 14, and this is the result, sum equal to 26. So the function, so the method sum over here is simply the method which input two string, convert it into integer and then calculate their sum, and then it would display the result or the sum of the two numbers, while the role of main over here is simply to call the method sum.
and main would perform nothing except calling the functions, calling the method sum, and sum would do everything for you or for the program. Here is the output. Only one method is being called in main, that is sum. Nothing is present in main except the function method call, that is sum. Let's discuss something very important, that is scope rule of functions. We need to understand scope rule of function. It's very much important. Variables are only available in the function in which they are declared. They are also called local variable. Variables उसी फंक्शन में अवेलेबल होते हैं जिसमें डिक्लेयर किए गए. अगर किसी दूसरे फंक्शन में आप उन वेरिएबल्स को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो वो वेरिएबल एक्सेसिबल नहीं होंगे, क्योंकि वो डिक्लेयर अगर किसी फंक्शन में या मेथड में किए गए हैं तो जिस फंक्शन या मेथड में वेरिएबल डिक्लेयर किए गए वो सिर्फ उसी में एक्सेसिबल हैं, उसके अलावा किसी दूसरे मेथड या फंक्शन में वो एक्सेसिबल नहीं है, बिकॉज दे आर लोकल वेरिएबल्स एंड लोकल वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल्स विच आर एक्सेसिबल ओनली इन द फंक्शन इन विच दे आर डिक्लेयर्ड. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे ए बी और सी अगर हम मेन में डिक्लेयर करते तो हम उन्हें यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते थे एक्सेप्ट कि हम उनकी वैल्यूज़ को पास ना करते. और अगर हमने ए बी और सी सम में डिक्लेयर किए हैं तो ये हम अगर मेन में यूज़ करेंगे तो वो उसके लिए एरर देगा अगर आपने उनकी वैल्यूज़ रिटर्न नहीं की. सो इनका जो स्कोप है ए बी और सी का, इसकी जो बाउंड्री है वो सिर्फ इसके अपने मेथड में है जहाँ पे इसे एक्सेस डिक्लेयर किया गया. तो अगर ये ए बी और सी मेन में डिक्लेयर होते तो सिर्फ मेन में यूज़ हो सकते थे, और अगर सम में ए बी और सी डिक्लेयर हुए हैं तो इनका जो स्कोप है वो विद इन सम है. आउटसाइड द फंक्शन अगर आपने ए बी और सी को उसकी वैल्यूज़ को सेंड करना है तो आपको एज ए आर्गूमेंट सेंड करने पड़ेंगे. डायरेक्ट वो एक्सेसिबल नहीं है क्योंकि ये लोकल वेरिएबल्स है और जिस मेथड में या फंक्शन में डिक्लेयर होते हैं सिर्फ उसी में एक्सेस हो सकते हैं. तो चूंकि हमने ए बी और सी को सम में यूज़ करना था इसलिए हमने इसे मेन में डिक्लेयर नहीं किया, क्योंकि इसका स्कोप जस्ट सम में. सिमिलरली इन जावा अगर ए बी सी की बात करें तो ये हमने सम मेथड में डिक्लेयर किए हैं और यहीं पे उन्हें इस्तेमाल किया. अगर आप उसे मेन में डिक्लेयर करते और यहाँ पे एक्सेस करते तो उसके लिए रिस्ट्रिक्शन थी, उसका स्कोप नहीं था. तो एक वेरिएबल जिस मेथड में डिक्लेयर होता है उसी मेथड में उसका स्कोप होता है, आउटसाइड द मेथड उसका स्कोप नहीं होता. तो फर्स्ट स्टेटमेंट कि वेरिएबल जिस मेथड में डिक्लेयर होता है या जिस फंक्शन में डिक्लेयर होता है सिर्फ उसी मेथड या फंक्शन में उसे इस्तेमाल किया जा सकता है. आउटसाइड द मेथड और फंक्शन आप उसे यूज़ वेरिएबल को नहीं कर सकते. और दूसरी चीज़, if you need the value of variable in any other function, you have to pass the value in the form of arguments while calling the function. Such function calls are called call by values. So this is very much important. This is quite possible that you need the values of variable in other function, and where you need to have values then you must pass the values in the form of arguments. आप उन वेरिएबल्स को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, आप उनकी वैल्यूज़ को पास कर सकते हैं एज आर्गूमेंट्स. अगर आपको किसी दूसरी जगह पे किसी दूसरे फंक्शन में या मेथड में वैल्यूज़ रिक्वायर्ड है तो वेरिएबल चूँकि आपके एक्सेस नहीं हो सकते स्कोप रूल के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आप उनकी वैल्यूज़ को पास कर सकते हैं. और वैल्यूज़ को पास करने के लिए आप उसको एज ए आर्गूमेंट लिस्ट के तौर पे फंक्शन कॉल में इंक्लूड करेंगे. और जब कोई फंक्शन इस तरह से कॉल किया जाएगा जिसमें आर्गूमेंट मौजूद होंगे, वैल्यूज़ पास हो रही होंगी, तो उसे हम उस कॉल को हम बोलेंगे कॉल बाय वैल्यूज़. तो हमारे पास बेसिकली टू काइंड्स ऑफ कॉल्स आर देयर, कॉल बाय वैल्यूज़ एंड कॉल बाय रेफरेंस. Over here we are discussing call by values. We will discuss call by reference
in the later stage when we will be able to have pointers, and then we can discuss call by reference. कॉल बाय रेफरेंस में एड्रेसेस का इस्तेमाल किया जाता है, इसको हम लेटर स्टेज में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे याद रखें कि किसी एक फंक्शन की वैल्यूज़ या मेथड की वैल्यूज़, सॉरी वेरिएबल की वैल्यूज़ अगर किसी दूसरे मेथड में या फंक्शन में रिक्वायर्ड है तो वेरिएबल आप डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, एज ए आर्गूमेंट आप उन्हें पास कर दें उन वैल्यूज़ को, और फिर अगर आपने कोई फंक्शन कॉल किया है जिसमें आर्गूमेंट लिस्ट मौजूद है तो उस फंक्शन या मेथड कॉल को हम कॉल बाय वैल्यूज़ कहते हैं। तो आज हम इस लेक्चर में हमारा जो फोकस होगा वो कॉल बाय वैल्यूज़ पे होगा, और लेटर स्टेज में फिर हम कॉल बाय रेफरेंस भी डिस्कस करेंगे। कॉल बाय वैल्यूज़ डिस्कस करते हैं। The order in which the arguments are passed are received in the same order in the called function. याद रखें कि जब आप एक फंक्शन को कॉल बाय वैल्यूज़ यूज़ कर रहे हो तो उसमें जो आर्गूमेंट्स का ऑर्डर है उसी ऑर्डर से वैल्यूज़ जो है वो रिसीव होंगी जब फंक्शन कॉल होगा। तो कॉल्ड फंक्शन में वैल्यूज़ का ऑर्डर वही होता है जो कॉलिंग फंक्शन में आपने आर्गूमेंट में ऑर्डर दिया है। फॉर एग्जांपल अगर आपने पहले इंटीजर फिर फ्लोट और फिर इंटीजर वैल्यू सेंड की है तो रिसीविंग एंड पे भी आपने पहले इंटीजर फिर फ्लोट और फिर इंटीजर आपने रिसीव करनी है। तो ऑर्डर का ख्याल रखना ज़रूरी है क्योंकि वैल्यू जिस ऑर्डर में सेंड होती हैं आर्गूमेंट में उसी ऑर्डर में आगे रिसीव होती हैं पैरामीटर्स में। इसकी कुछ एग्जांपल्स, राइट डाउन द प्रोग्राम दैट इनपुट द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट in main and convert it into centigrade in a user defined function. अब इसमें हमने करना ये है कि टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट हमने मेन में इनपुट करना है और उसको कन्वर्ट करना है सेंटीग्रेड में इन अ यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो जो इनपुट का काम है वो मेन में है और जो कन्वर्जन का टास्क है वो यूज़र डिफाइंड फंक्शन को दिया गया। तो इसमें हम एक फंक्शन डेवलप करेंगे नेम्ड एज टेम्परेचर। द रिटर्न टाइप इज वाइड, दैट सिंपली इंडिकेट दैट नो वैल्यू इज बीइंग रिटर्न, बट ओवर हेयर इट इज नॉट वाइड, रादर वी हैव float f, that is an indication that one value float is being received in this function. Float f mean that one value of type float would be received in this function temperature. So we haven't wide over here. Wide meant that no value is being received, but over here we have float f, that means that float value is being received. We have a variable f of type float, enter temperature in Fahrenheit, see in f, the value of f would be input, then a temperature call, and with no blank brackets. We have f over here. In the previous lectures we were having blank braces, blank brackets, and right now we do not have blank brackets, rather we have f over here, where f is the indication that value of f is being passed. Please keep it in mind that variable is not being passed, rather the value of this variable f is being passed. So the function is being called with one argument, and that argument is the value of f. The control is transferred to the function, and in the list of parameters we have float f. Here this f is with new declaration. The scope of this f is ended with this function, and we have new f. This is not duplicate declaration, rather this is a new declaration in the new function. So the value of f
this f would be passed in this f. Value of this f would be passed in this f. You can have f1, f2, f3, any other variable over here. So it's up to you whether you keep the same name of the variables or you have different name of variables, but type must be same. तो यहाँ पे आप इस f की वैल्यू जो है वो इस f को सेंड कर रहे हैं, तो ये f एक नया वेरिएबल है, तो इस f की जो वैल्यू है वो इस f में आएगी। तो आप इस वेरिएबल का नेम जो है वो अपनी मर्जी से सेम भी रख सकते हैं और डिफरेंट भी रख सकते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू इस f में आएगी। तो यहाँ पे एक वेरिएबल c है जो इसका लोकल वेरिएबल है, इसमें डिक्लेयर हुआ है Fahrenheit -32 whole divided by 1.8, and the value of c would be calculated, and this value of c would be displayed in this function temperature. तो इस प्रोग्राम में हमारा एक फंक्शन है टेम्परेचर। जब उसे कॉल किया जाता है तो वो एक वैल्यू लेके जाता है और वो वैल्यू ऑफ f लेके जा रहा है, फ़ारेनहाइट की वैल्यू जिसकी वैल्यू मेन में इनपुट हुई है। वो वैल्यू जब फ्लोट रिसीव करेगा, आगे आपका टेम्परेचर की डेफिनेशन में जब वैल्यू रिसीव की जाएगी तो वहाँ पे भी आपको एक सेम वेरिएबल चाहिए होगा, मीन ऑफ सेम टाइप। आप उसका नेम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने सेम रख दिया, आप उसे डिफरेंट भी रख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको क्लैरिफाई कर दूं, यहाँ पे आप इसको जो है वो चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको F1 कर दें, F2 कर दें, F3 कर दें, डजेंट मैटर। सॉरी, हियर वी वर। तो यहाँ पे आप वेरिएबल नेम चेंज कर दें। अगर आप इसे यहाँ पे F1 कर देंगे तो यहाँ पे भी आप इसे F1 कर दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर इधर F1 करेंगे तो इधर भी F1 कर दें, लेकिन टाइप सेम होनी चाहिए। जिस टाइप का डाटा सेंड होगा उसी टाइप का वेरिएबल उसे रिसीव भी करेगा। तो यहाँ से f की वैल्यू सेंड हो रही है तो यहाँ पे ये f उसे रिसीव कर रहा है और सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर रहा है। सेंटीग्रेड यहाँ पे कैलकुलेट होगा। इसका आउटपुट चेक करें, एंटर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अब ये 98 जो है ये इनपुट हुआ है आपका मेन में, और फिर 98 की वैल्यू पास हुई है आगे फंक्शन में, वहाँ पे फिर सेंटीग्रेड कैलकुलेट हुआ है, और ये कैलकुलेशन का काम जो है ये आपका फंक्शन में हुआ है टेम्परेचर में। तो वैल्यू मेन में इनपुट हो रही है, और जब फंक्शन कॉल किया जा रहा है तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू लेके जा रहा है और वहाँ पे सेंटीग्रेड कैलकुलेट कर रहा है। ओके जी, सेम मेथड इन जावा, सेम प्रोग्राम। enter temperature in Fahrenheit and the value of f is input. We have set the type of f as float, so we use the method float.parseInt. अगर हम स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे हम इंटीजर डॉट पार्सइंट करते हैं, और यहाँ पे हमने स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट। f में वैल्यू कन्वर्ट होगी और फिर टेम्परेचर का मेथड कॉल होगा। इसमें f की वैल्यू जो है वो एज आर्गूमेंट पास हो रही है, ये f की वैल्यू इस f में मूव करेगी और फिर यहाँ पे ये वैल्यू यूज़ होगी, c कैलकुलेट होगा और देन वी वुड डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ c। So here is the output, enter temperature in Fahrenheit, that is 98. This value is input in main, while this value has been passed in the function temperature, where temperature method would convert the value of f into centigrade and the value of centigrade is displayed. Let's discuss another example.
यहाँ पे हमने एक मैं फंक्शन लिया एवरेज, जिसके आर्गुमेंट लिस्ट में 3 वेरिएबल्स हैं। अब एक्चुअली जो वेरिएबल्स हैं वो हमारे पास 2 इंटीजर हैं, ए एंड सी, और एक फ्लोट है दैट इज बी। वैल्यू ऑफ ए, बी एंड सी आर इनपुट इन मेन. Value of A is input, value of B is input, value of C is input, and then the function average is called. In the list of argument we have A, B and C, and these variables are separated by commas. The argument list A, B and C, the first argument is of type integer, the second argument is of type float, and the third argument is of type इंटीजर. सो ऑर्डर का आप ख्याल रखेंगे कि पहले इंटीजर वैल्यू पास हो रही है, फिर फ्लोट और फिर इंटीजर. तो जब ये फंक्शन कॉल होगा तो कंट्रोल एवरेज के फंक्शन में ट्रांसफ़र होगा, तो उसकी डेफिनेशन में आगे लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स भी आपके पास होगी जहाँ पे वैल्यूज़ रिसीव की जाएंगी. तो यहाँ पे देखें मैंने वेरिएबल नेम चेंज कर दिए हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो. तो ए की वैल्यू इस एक्स में पास होगी, और चूंकि ए इंटीजर था इसलिए एक्स को भी हम इंटीजर रखेंगे, और बी की वैल्यू वाई में पास होगी, तो चूंकि बी फ्लोट था इसलिए इसको वाई को भी हम फ्लोट रखेंगे, और सी की वैल्यू जी में पास होगी, तो चूंकि जी इंटीजर था इसलिए सी इंटीजर था इसलिए जी को भी हम इंटीजर रखेंगे. तो जो सीक्वेंस जिस सीक्वेंस से वैल्यू सेंड होती हैं उसी सीक्वेंस से वैल्यूज़ रिसीव होती हैं. तो ए, बी और सी की वैल्यू सेंड हो रही हैं, तो रिसीव उन्हें करने के लिए बैठे हुए हैं एक्स, वाई और जी. तो अगर पहली वैल्यू इंटीजर सेंड हो रही है तो रिसीव भी इंटीजर करेगा, दूसरी वैल्यू फ्लोट सेंड हो रही है तो रिसीव भी फ्लोट करेगा, तीसरी वैल्यू इंटीजर सेंड हो रही है तो उसे रिसीव भी इंटीजर करेगा. तो इस सीक्वेंस को ज़हन में रखना बहुत ज़रूरी है कि जिस सीक्वेंस से वैल्यू सेंड होती हैं उसी सीक्वेंस से आगे रिसीव होती हैं, और जो रिसीविंग वेरिएबल्स हैं उनके नेम सेम होना ज़रूरी नहीं है, आप डिफरेंट नेम रख सकते हैं. जैसे इधर से ए, बी, सी की वैल्यूज़ जा रही थी तो उधर से एक्स, वाई, जी ने उन्हें रिसीव किया. तो जो वैल्यू आपने ए में इनपुट की है वो वैल्यू एक्स के पास जाएगी, जो वैल्यू बी में इनपुट की है वो वाई के पास जाएगी, और जो वैल्यू सी में इनपुट की है वो जी के पास जाएगी. इस तरह से एक्स, वाई और जी के पास ए, बी, सी की वैल्यूज़ आ चुकी हैं. एवरेज के फंक्शन में फ्लोट, सम और एवरेज उसके 2 लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किए गए. सम ने एक्स, वाई और जी को ऐड किया, तो एक्चुअली एक्स, वाई और जी में कौन सी वैल्यूज़ थी? वैल्यू ऑफ ए, बी एंड सी. और उसके बाद सम कैलकुलेट हो जाएगा तो उसको आप 3 पे डिवाइड करेंगे तो एवरेज आ जाएगी, और सम और एवरेज आपकी डिस्प्ले हो जाएगी. तो 3 वैल्यूज़ आप इनपुट करेंगे मेन में, उनको पास करेंगे फंक्शन में, एवरेज फंक्शन में. वहाँ पे उन 3 नंबर्स का सम कैलकुलेट होगा और एवरेज कैलकुलेट होगी, और वो सम और एवरेज डिस्प्ले होगी. तो इसमें जो बात आपको समझानी थी वो सिंपली ये थी कि आप ये लिस्ट ऑफ आर्गूमेंट यहाँ पे बनाएंगे जिन वैल्यूज़ को आपने पास करना है, और उसके ऑर्डर को आपने ख़ास तौर पे ज़हन में रखना है, सीक्वेंस को, कि जिस सीक्वेंस से वैल्यू सेंड होती हैं उसी सीक्वेंस से रिसीव होती हैं, तो उनकी टाइप का यहाँ पे ख्याल रखना ज़रूरी है. वेरिएबल नेम आप अपनी मर्ज़ी से तब्दील कर सकते हैं. इसका आउटपुट चेक करें. फर्स्ट वैल्यू ऑफ ए 12, value of b 23.5, this was float variable, and value of c is 22. So values are input in main, then these values are passed. 12 को आप पास कर देंगे x में, 23.5 को पास कर देंगे y में, 22 को पास कर देंगे z में, जहाँ पे इनका सम कैलकुलेट होगा और एवरेज जो है वो डिस्प्ले होगी. तो इस चीज़ को हम जावा में देखते हैं. जावा में सेम हमने किया, 2 इंटीजर वेरिएबल ले लिए हैं ए और सी, और एक फ्लोट वेरिएबल है बी. तो यहाँ पे हमने इनकी वैल्यूज़ इनपुट की, उसके बाद एवरेज का मेथड कॉल किया जो सेम ए, बी और सी को लेके जा. तो यहाँ पे भी वो आपने ऑर्डर वाली बात ख्याल रखना है, जिस सीक्वेंस में वैल्यू सेंड होती हैं उसी सीक्वेंस से आगे रिसीव होती हैं.
तो ए चूंकि इंटीजर था तो आगे रिसीव एक्स ने किया उसकी वैल्यू को, तो उसकी टाइप इंटीजर रखी। बी वाज फ्लोट, सो बी की वैल्यू जो सेंड हो रही है वो फ्लोट हो रही है, तो आगे रिसीव भी उसे जो करेंगे वो भी फ्लोट वेरिएबल करेगा। और सी की वैल्यू सेंड हो रही है तो उसे रिसीव भी इंटीजर करेगा चूंकि सी इंटीजर था। तो यहाँ पे इंटीजर फ्लोट और इंटीजर वैल्यू सेंड हुई और फिर रिसीव भी आगे इंटीजर फ्लोट और इंटीजर ने किया। तो सिमिलरली यहाँ पे सम और एवरेज को हमने डबल डिक्लेयर किया। फ्लोट को जब हम उसकी कैपेसिटी को या उसके साइज़ को बढ़ाना चाह रहे होते हैं तो हम उसे डबल डिक्लेयर करते हैं। तो 8 बाइट्स लेता है आपका डबल। सम कैलकुलेट होगा एक्स वाई और जी, where the value of x, y and z are actually the values of a, b and c। तो वो वैल्यूज़ हमने पास कर दी थी x, y और z में। तो यहाँ पे एवरेज के मेथड में ए बी सी जो है वो अननोन है और मेन के मेथड में x, y, z अननोन है। तो ए बी सी लोकल हैं आपके मेन के लिए और x, y, z लोकल हैं आपके एवरेज के लिए। तो x, y और z का स्कोप सिर्फ एवरेज के फंक्शन में है, आप इन्हें मेन में एक्सेस नहीं कर सकते। और ए बी सी का स्कोप जो है वो मेन में वैलिड है, आप उसे एवरेज में एक्सेस नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें वैल्यूज़ जो है वो एज ए आर्गूमेंट के तौर पे पास करनी पड़ती हैं। जैसे ए बी सी की वैल्यूज़ हमने पास की और फिर उसका सम और एवरेज कैलकुलेट किया और डिस्प्ले किया। हेयर इज़ द आउटपुट। ए, बी और सी ये वैल्यूज़ जो इनपुट हुई हैं और फिर इन वैल्यूज़ को 12, 23.5 और 14 को हमने पास किया। 12, 23.5 and 14. So this value of a is passed in x. The value of x would become 12. The value of y would become 23.5. The value of z would become 14. So we have added these values x, y and z and calculated sum, and after sum we have calculated average and sum and average are displayed. ओके जी, इस तरह से हम वैल्यूज़ जो है वो पास कर सकते हैं एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में, लेकिन उसका आर्डर या सीक्वेंस जो है वो ख़ास तौर पे उसको जहन में रखना ज़रूरी है, क्योंकि वैल्यूज़ जिस सीक्वेंस से आप पास करते हैं वो उसी सीक्वेंस से रिसीव होती हैं। तो उस सीक्वेंस में उसकी टाइप का ख्याल रखा जाता है कि जो वैल्यू जिस टाइप की पास हो रही है उसी टाइप का वेरिएबल उसे रिसीव भी करेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम वैल्यूज़ जो है वो रिटर्न करनी भी सीखेंगे। तो जिस तरह से वैल्यूज़ जो है वो पास की जा सकती हैं किसी दूसरे फंक्शन में, इस तरह से वैल्यू रिटर्न भी की जा सकती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।